So welcome all of you. Here I am today to discuss all the possible sums of the chapter Determination of Income and Employment, okay, of CBSE as well as ISC. I know this chapter bothers a lot of you, so you need not worry because today I am going to provide you with all the possible variety of sums that can come in your board exams. So like in CBSE, we are expecting a 4 marks numerical question from this chapter. Okay, so anyway, I will be listing first all the formulas which will make easier for us to proceed with the class. Okay, so all the possible formulas of this chapter, I am listing it down and I would request every one of you to also take a note of it and रोज go through करो obviously, तब जाके दिमाग में बैठ भी जाएगा. Okay, because this 4 marks, trust me, is going to be very scoring, very easy, and even in ISC you can expect 3-4 marks question from here. So for you guys also, you know, it's gonna be a cakewalk. Okay, so first I'm listing the formulas. Okay, so quickly take a note of it. Okay, so like you know, in this chapter we discussed about the equilibrium level of income and employment, which takes place via two approach. One is ADAS approach and the other one is SI approach. So I'm listing the formulas accordingly. Okay, so AD here stands for aggregate demand. So aggregate demand is equal to C plus I, because here we are taking a two-sector model which comprises of households and firms, right? तो household की डिमांड को क्या बोलते थे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो C से डिनोट होता था, एंड फर्म्स की डिमांड को क्या बोलते थे? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो I से डिनोट होता था. So therefore AD is equal to C plus I. C is consumption and I होता है autonomous investment. Next is what? Next is aggregate supply. And याद है aggregate supply was equal to national income. So aggregate supply and national income is the same thing. ठीक है? So aggregate supply is equal to national income. Okay? अब aggregate supply के दो components होते थे, या आप बोल सकते हो income के दो components होते हैं, consumption and savings. So AS is equal to C plus S also. Okay? फिर we are going to discuss about consumption equation. तो हमारा consumption equation बड़ा ही काम का चीज है, ठीक है? क्योंकि इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं A plus BY. C is equal to A plus BY. आप A के बदले C बार भी लिख सकते हो. बहुत सारे बुक्स में A के बदले C बार भी लिखा है, which is okay. It's up to you how you are going to denote it. Okay? So C is equal to A plus BY, where A is autonomous consumption, B is what? It is marginal propensity to consume. So A हमारा इधर हो गया autonomous consumption, A हो गया autonomous consumption and B हो गया marginal propensity to consume. A हो गया autonomous consumption and B हो गया marginal propensity to consume. Okay? अब अपन करते हैं कि marginal propensity to consume क्या होता है? वो होता है change in consumption by change in income. Marginal propensity to consume is equal to change in consumption by change in income. Okay? फिर consumption से related APC भी था, which is C by Y. APC होता है ratio of consumption to income. So APC is equal to C by Y. Okay? फिर next आते हैं savings पे, ठीक है? So consumption equation से अपन savings equation derive कर सकते हैं, right? तो savings equation क्या होता था? Savings equation was minus A plus 1 minus B into Y. Savings equation was what? Minus A plus 1 minus B into Y. Minus A here is autonomous level of this savings, ठीक है? और 1 minus B जो इधर था, that was MPS, marginal propensity to save. Okay? So let me introduce you to the formula of MPS. MPS होता है change in savings by change in income. देखो MPC होता है change in consumption by change in income. ठीक है? MPC और MPS भाई भाई है, ठीक है? So MPC is like consumption पे फोकस कर रहे हैं, MPS savings पे फोकस कर रहे हैं. तो MPC हो गया change in consumption by change in income, MPS हो गया change in savings by change in income. Similarly पता है APC और APS भी भाई भाई है. APC जो होता है वो C by Y होता है, APS जो होता है वो S by Y होता है. APS जो होता है that is savings by income. ठीक है? फिर next है APC plus APS is equal to 1. APC plus APS is equal to 1. ठीक है? फिर ये relationship है between APC and APS, ठीक है? Which is equal to 1. फिर next है relationship between MPC and MPS which is equal to 1. ठीक है? So ये सब स्टार्टिंग के फॉर्मूलाज हैं. इसके बाद आता था हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर टॉपिक, जो कि CBSE, ISC जो भी बोलो, कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो काउंसिल टच करता ही है इससे. ठीक है? You can get any kind of question from here. It can be 1 mark question, it can be a 4 mark sum. So any kind of thing you can expect from here. It's very 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 important. Okay? So इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को अपन कैसे नोट करते थे? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का काम था
पता करना कि इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम में कितना चेंजेस आ रहा है। ओके, सो के वाज बेसिकली डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, ठीक है। फिर के का और भी फॉर्मूलाज था, के वाज 1/1 माइनस एमपीसी भी बोलते थे, एंड के ये भी बोल सकते हैं कि के इज 1/एमपीएस। क्यों? बिकॉज एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस एमपीसी क्या होगा? 1 माइनस एमपीसी क्या होगा? एमपीएस होगा ना। सो वी कैन आल्सो रीराइट दिस ऐसे, ठीक है। k इज 1/1 माइनस एमपीसी, आप उसको रीराइट करके ऐसे भी लिख सकते हो कि k इज इक्वल टू 1/एमपीएस, k इज इक्वल टू 1/एमपीएस। ओके, फिर याद रखना इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे, EQ here is for equilibrium level of income पे AD equal to AS होता है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे AD इक्वल टू AS होता है, या S इक्वल टू I, या सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे AD इक्वल टू AS होता है और S इक्वल टू I होता है। Okay, so these are the guys possible formulas of this chapter. Okay, so ये formulas एक बार go through कर लो, note कर लो, and then we can quickly start with all the sums. So I'm telling you one thing, ये जो recording है, it will be divided into 2 parts. ठीक है? So it's a one short video which will be divided into 2 parts, and I will try to cover the varieties of sums. And if you need to practice more sums, you just let me know. You can contact me on my email ID, which I will be listing down in my description. Okay, and all such practice करना है with the solutions, you will get it via your Gmail. Okay, so please take a note of it. चलो, so let us discuss the first category of sums. Okay, तो अपन अभी ना first category of sums discuss करते हैं जो आ सकते हैं. Okay, so first category of sums में अपन ये देखते हैं कि अपने को सिंपल है एपीसी, एपीएस, एमपीसी या एमपीएस निकालने बोलेगा, ठीक है। एपीसी, एपीएस, एमपीसी या एमपीएस निकालने बोलेगा, एंड या तो वो लोग टेबल बना के बता सकते हैं हमें, या तो वो लोग स्टेटमेंट बेस दे सकते हैं, या तो याद है बचपन में अपने फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करते थे, बड़ा मजा आता था, यहाँ भी वैसे ही फिल इन द ब्लैंक्स भी दे सकते हैं, ठीक है। तो कोर यही है कि आपको एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस निकालना होगा। अब क्वेश्चन काउंसिल जैसे भी दे, टेबल में दे, फिल इन द ब्लैंक्स करके दे या स्टेटमेंट में दे, तरीका तो नहीं चेंज होने वाला, राइट। सो अपने अभी वो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सम डिस्कस करेंगे। तो आप हेडिंग देख सकते हो, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सम वेयर we need to find values of APC, APS, MPC, MPS. Where we need to find the values of APC, APS, MPC, MPS. ओके, ये सब वैल्यूज फाइंड करना होगा। ऐसे काइंड ऑफ सम्स आपको 3 तरीके से दिए जा सकते हैं, ठीक है। एक आपको टेबल फॉर्मेट में दिया जा सकता है, एक आपको टेबल फॉर्मेट में दिया जा सकता है, एक आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दिया जा सकता है, और एक आपको स्टेटमेंट बेस्ड फॉर्म में दिया जा सकता है, ठीक है। सो डिस्कस करें, अपने वैरायटी ऑफ सम्स करते हैं अभी। ओके, सो पहला काइंड ऑफ सम, पहला सम देखो क्या बोला है। सपोज हमें इनकम दिया है, इनकम को y से डिनोट करते हैं। अगर वो लोग इनकम लिख दिए, y नहीं भी लिखे, तो अपन को पता है ना कि इनकम y से डिनोट होता है, अपन अपने सिंप्लिसिटी के लिए y लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो y लिख देना। ओके, सो इनकम दिया हुआ है अपने को 200, 250, 300, 350, 400, ठीक है। एंड अपने को सेविंग्स भी दिया हुआ है, अपने को सेविंग्स भी दिया हुआ है, सेविंग्स यानी S दिया हुआ है, ठीक है, विच इज 5, 15, 20, 50। ओके, अब अपने को क्या क्या निकालने बोला है, अपने को दे आर आस्क्ड टू फाइंड आउट एपीसी, एपीएस, एमपीसी, सभी बोल दिया, एमपीएस, ठीक है। ये सब अपने को निकालने बोला है। ओके, सो तुम लोग देख सकते हो, हम लोग को एपीसी, एमपीसी निकालने बोला है, बट सी तो हमारे पास है ही नहीं, राइट। सी तो है नहीं इधर, तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी। सो हो सकता है जब आपको टेबल बेस्ड क्वेश्चंस दे और जो आपको निकालने बोले, ठीक है, उसमें कुछ और एडिशनल टेबल में आपको बनाना पड़ सकता है कॉलम्स। सो डोंट वरी, मेक इट, ठीक है। तो आपको इधर और एक कॉलम बनाना होगा डिपेंडिंग ऑन द सम, दैट इज सी का कॉलम। एंड ऑल्सो वन थिंग गाइस,
जब भी आप कुछ भी सॉल्व कर रहे हो प्लीज फॉर्मूलाज लिखो, फॉर्मूलाज पे भी मार्क्स है. इफ यू डोंट राइट द फॉर्मूलाज योर मार्क्स आर गोइंग टू गेट डिडक्टेड, सो डोंट फॉरगेट टू राइट द फॉर्मूलाज. ओके, सो हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू फर्स्ट, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कंजम्पशन. अब कंजम्पशन क्या होता है? कंजम्पशन पता है इनकम माइनस सेविंग्स होता है. याद है जो अपन अभी फॉर्मूलाज लिखे थे, जो मैंने थर्ड फॉर्मूला लिखा था y इज इक्वल टू सी प्लस एस मैंने लिखा था, राइट. फिर मैंने बोला था कि c क्या होता है, मतलब y इक्वल टू सी प्लस एस होता है, तो c क्या होगा y माइनस एस. ठीक है, तो 200 अब ये लाइक हियर यू कैन सी कि यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ बेसिकली जीरो है. सो 200 माइनस जीरो दैट इज 200. ऊपर जीरो था, ओके, डैश नहीं था, जीरो था. सो 200 माइनस जीरो इज 200. फिर 250 माइनस 5 इज 245. 245. फिर 300 माइनस 15 है 285. ऐसे कर करके माइनस करते जाना. 350 माइनस 20 330. 400 माइनस 50 350. तो अपन को इजीली कंजम्पशन मिल गया. अब अगर अपने को कंजम्पशन मिल गया है, अपने कुछ भी निकाल सकते हैं. अपने एपीसी निकाल सकते हैं ना. एपीसी होता है सी बाय बाय, एपीसी होता है सी बाय बाय. सो दैट इज 200 बाय 200, 200 बाय 200 विच इज इक्वल टू 1. फिर करोगे 245 बाय 250. फिर करोगे 285 बाय 300. फिर 330 बाय 350. फिर 350 बाय 400. I know CBSE students को एक पेन लेना पड़ता है, they are not provided with a calculator, but while solving, I am solving values for you. You focus on the तरीका, okay? And don't worry, ठीक है, कभी कभी अच्छा होता है. So 245 मैं solve कर देती हूँ तुम लोग के लिए, ठीक है? However, you can also solve on your own. 0.98, ठीक है? फिर आ रहा है 0.95. हाँ, आप पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस भी ले सकते हो और आप पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस भी ले सकते हो. आप पॉइंट के बाद अप टू 2 प्लेसेस भी ले सकते हो, पॉइंट के बाद अप टू 3 प्लेसेस भी ले सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, फिर 330 जैसे यहाँ 0.94. बट जो पॉइंट के बाद अगर आप 2 प्लेसेस ले रहे हो तो सेकंड वाले को राउंड ऑफ करना. अगर आप 3 प्लेसेस ले रहे हो तो थर्ड वाले को राउंड ऑफ करना. डोंट फॉरगेट टू राउंड इट ऑफ. ओके, दैट्स द ओनली थिंग. या So 350 by 400 is coming 0.875. ठीक है, so अपन को APC मिल गया. अब जो अपने APS है ना, वो दो तरीके से निकाल सकते हैं. या तो अपने सेविंग्स बाय इनकम करके भी निकाल सकते हैं, या अपने 1 माइनस APC भी करके निकाल सकते हैं. तो यहाँ अपने सेविंग्स बाय इनकम करके भी निकाल सकते हैं, या 1 माइनस APC करके भी निकाल सकते हैं. इट्स अपॉन यू. तुमको जो कन्वीनियंट लगता है तुम वो चीज करो. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल हम अभी s बाय y करके कर रहे हैं. सो इट्स अपॉन यू. आपको जो भी ठीक लगे यू कैन डू दैट. ओके, सो पहले केस में इट्स बेसिकली 0 by 200, so you can put a dash. ठीक है, you can put a dash or you can write 0 as well. जैसे this by 0 आप 0 भी लिख सकते हो. ओके, फिर 5 by 250, 5 by 250 या डैश भी लिख सकते हो. ठीक है, डिपेंडिंग क्या इन्फो दिया है. फिर करना होगा 5 by 250. 5 by 250 is 5 by 250 which is 0.02. फिर 15 by 300 which is 0.05. फिर है 20 by 350 which is 0.057. उसके बाद है 50 by 400, 50 by 400 which is 0.125, 0.125. ठीक है, फिर MPC निकालना है. MPC निकालने का तरीका क्या है? चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम. चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम. तो पहले केस में डैश होगा. पहले केस में तो तुम नहीं निकाल सकते बिकॉज इसके पहले क्या कंजम्पशन है, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, दैट इज व्हाई. ओके, दूसरे केसेस में निकाल सकते हैं. कैसे निकालोगे? चेंज इन कंजम्पशन कैसे निकालोगे? 245 माइनस 200. ठीक है, चेंज इन कंजम्पशन इज बेसिकली व्हाट? 245 माइनस 200 डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम. नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस करना है. डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम व्हिच इज 250 माइनस 200, व्हिच इज 250 माइनस 200, 250 माइनस 200. ऐसे करके यू नीड टू फाइंड आउट MPC का वैल्यूज. ऐसे करके MPC के वैल्यूज निकालना होगा. ठीक है, समझ में आया? नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस करके. ओके, तो लेट्स बिगिन, लेट्स डू इट. ये आ रहा है 45 डिवाइड बाय 50 दैट इज 0.9. ठीक है, 0.9. सिमिलरली ये होगा 285 माइनस 245 divided by 300 minus 250 divided by 300 minus 250. ठीक है, so 285 minus 245 is 40. 40 divided by 50.
40 डिवाइड बाय 50, सो यहाँ आ रहा है 0.8। फिर उसके बाद 330 माइनस 285, 330 माइनस 285 दैट इज 45 डिवाइड बाय 50, क्योंकि अगेन चेंज इन इनकम हर केस में 50 से ही हो रहा है, तो डिनोमिनेटर 50 ही है, ठीक है। सो विच इज कमिंग 0.9। फिर होगा 350 माइनस 330 दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 50 विच इज आएगा 0.40, ठीक है। सो ये था एमपीसी का वैल्यूज। अब आप एमपीएस का वैल्यूज इफ यू वांट इट टू बी सिंपल, आप अगेन दो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई भी यूज कर सकते हो, या 1 माइनस एमपीसी भी यूज कर सकते हो। ओके, सो मैं 1 माइनस एमपीसी यूज कर रही हूँ, ज्यादा जल्दी होगा कैलकुलेशन, ठीक है। 1 माइनस एमपीसी, क्यों 1 माइनस एमपीसी किया मैंने, बिकॉज पता है ना एमपीएस प्लस एमपीसी इक्वल टू 1 होता है, तो एमपीएस क्या होगा 1 माइनस एमपीसी होगा ना, तो दैट इज व्हाई मैंने यूज किया है, ठीक है। हाँ, सो यहाँ होगा 0.1, यहाँ 0.2, यहाँ 0.1, यहाँ 0.60, क्लियर। तो ये तो तुम बच्चों वाला सम था, सब कुछ दे दिया था और बस बोला था कि निकालो एपीसी वेपीसी। हाँ, तुमको ये समझना होगा कि सी तुमको खुद से निकालना है, वो तुमको दिया नहीं, राइट। सो इजी, आई गेस कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस सम में, ठीक है। फिर लेट्स डू अ सेकंड काइंड ऑफ सम। सेकंड काइंड ऑफ सम में भी क्या है, तुमको इनकम दे दिया है, you have been provided with the income which is 0, 100, 200, 300, ठीक है, इनकम दे दिया है। और एमपीसी दे दिया है 0.75, 0.75, 0.75। तुमको बोला है सेविंग्स निकाल के दिखाओ एंड एपीसी निकाल के दिखाओ। You are supposed to find out savings and APC and some में nothing else is mentioned, बस, ठीक है। सो तुमको पहले ना, अब देखो सेविंग्स तुम एक तरीके से निकाल सकते हो, पता है कैसे, इनकम माइनस कंजम्पशन करके, है ना। y इक्वल टू सी प्लस एस होता है, सेविंग्स क्या होगा इनकम माइनस कंजम्पशन, वो तरीका से अपन निकाल सकते हैं इनकम माइनस कंजम्पशन करके, राइट। अभी देखते हैं, बट कंजम्पशन तो है नहीं, वी आर नॉट प्रोवाइडेड विद कंजम्पशन हियर, सो अपन का पहला स्टेप क्या होना चाहिए, अपने को एक कॉलम बनाना चाहिए एंड जहां अपने को कंजम्पशन कैलकुलेट करना चाहिए। सो फर्स्ट वी नीड टू प्रिपेयर वन कॉलम ऑफ कंजम्पशन। इट्स इजी टू फाइंड आउट कंजम्पशन, क्योंकि एमपीसी दे दिया ना, एमपीसी क्या होता है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, है ना। डेल्टा वाई इज चेंज इन इनकम, तुम इधर ऑब्जर्व करो इनकम तो 100 से ही चेंज हो रहा है, चेंज इन इनकम तो 100 ही है, सो चेंज इन इनकम इज 100। हाँ, अपने अब एमपीसी और डेल्टा वाई यूज करके डेल्टा सी निकाल लेते हैं सबसे पहले। सो अपने ना सबसे पहले चलो डेल्टा सी का कॉलम बना लेते हैं, फिर अपने सी का कॉलम बना लेंगे, ठीक है। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप, ओके। सो डेल्टा सी कैसे निकालेंगे, सुनो इधर देखो, एमपीसी क्या होता है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, ठीक है। तो डेल्टा सी क्या होगा एमपीसी इंटू डेल्टा वाई, डेल्टा सी क्या होगा एमपीसी इंटू डेल्टा वाई, तो डेल्टा सी क्या होगा एमपीसी इंटू डेल्टा वाई। लेट्स डू दैट। डेल्टा वाई वी नो चेंज इन इनकम 100 इज कांस्टेंट, ओके। तो मैं डेल्टा वाई का कॉलम भी बनवाई, एमपीसी दैट इज 0.75 इंटू 100, 0.75 इंटू 100 विच इज 75। पहले वाले केस में कुछ नहीं होगा डैश, दूसरे वाले केस में इट विल बी 75, तीसरे केस में भी इट विल बी 75 ओनली, कैसे 0.75 into 100, थर्ड में भी इट गोइंग टू बी 75, ठीक है। अच्छा, हाँ, इज दिस क्लियर। और एक चीज है, तुमको ना ये सम में एक चीज दे दिया है, जो फर्स्ट जीरो लेवल ऑफ इनकम पे तुमको क्वेश्चन में दिया है सेविंग्स -30 है, क्वेश्चन में मेंशन था, मैं लिखी नहीं, क्वेश्चन में मेंशन था जीरो लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग्स जो है वो -30 है, वो -30 है, ठीक है। सो याद है जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी वी यूज टू कंज्यूम समथिंग, वो इंसान खाना पीना तो नहीं छोड़ देगा ना, इवन अगर इनकम जीरो है तो। उस टाइप के कंजम्पशन को क्या बोलते थे, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। सो इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम वी आर कंज्यूमिंग समथिंग दैट वाज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अगर इनकम जीरो है तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा कंजम्पशन कुछ हो रहा है, ठीक है, तो तुम्हारे पास 2-3 ऑप्शन है, या तो तुम चोरी करके पैसा लाओगे, वो तो अलाउड नहीं है ना स्टार्टअप में, या तो तुम बैंक बोरो करोगे अपने दोस्तों से, या भीख मांगोगे, वो भी तुम नहीं करोगे, इज्जत का बात है भाई। तो फिर तुम क्या करोगे, पक्का तुम पुराने में सेविंग्स किए होगे, उसको तुम यूज करोगे, जिसको डिस सेविंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो इधर -30 डिनोट कर रहा है, ओके। अब हम लोग को कंजम्पशन वाला कॉलम फिल करना है। सो अपने को पता होता है ना कि कंजम्पशन होता है इनकम माइनस सेविंग्स। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे तुम ऑब्जर्व करो सेविंग्स -30 है, तो कंजम्पशन कितना होगा, कंजम्पशन कितना होगा, 0 माइनस ऑफ -30, 0 माइनस ऑफ -30 which is equal to 30,
विच इज इक्वल टू 30। उसके बाद हमको पता है हर बार मेरा कंजम्पशन 75 से चेंज हो रहा है। उसके बाद मेरे को पता है मेरा कंजम्पशन हर बार 75 से चेंज हो रहा है। सो 100 लेवल ऑफ इनकम पे मेरा कंजम्पशन कितना होगा 30 प्लस 75, 30 प्लस 75 विच इज 105। फिर वापस मेरा कंजम्पशन 75 से चेंज हुआ तो मेरा नया कंजम्पशन कितना होगा 105 प्लस 75, 105 प्लस 75 विच इज 180। फिर क्या होगा 180 प्लस 75 विच विल बी 255, विच विल बी 255। तो ऐसे करके कंजम्पशन मिल गया। अब कंजम्पशन मिल जाएगा तो एपीसी इजीली मिल जाएगा विच इज वेरी सिंपल, सी बाय वाई। एपीसी इज नथिंग बट सी बाय वाई, मतलब 30 बाय 0 विच इज डैश, फिर 105 बाय 100, फिर हो गया 180 बाय 200, फिर हो गया 255 बाय 300। ठीक है, सो इसको सॉल्व कर लो। 105 ये हो गया 1.05, ये हो गया 0.9, ये हो गया 0.85। ठीक है, ये हो गया 0.85। फिर सेविंग्स इजीली निकल जाएगा इनकम माइनस कंजम्पशन करके, सेविंग्स इजीली निकल जाएगा इनकम माइनस कंजम्पशन करके। सो इनकम माइनस कंजम्पशन करके दैट इज 100 माइनस 105 माइनस 5, फिर 200 माइनस 180, 200 माइनस 180 20, फिर 300 माइनस 255, 300 माइनस 255 which is 45, which is 45। ठीक है, तो ये सेकंड टाइप ऑफ सम है जो आ सकते हैं। अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो देखना कि जस्ट यूजेज ऑफ फॉर्मूलाज है, आई मीन यू शुड नो कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, दैट्स इट। ठीक है, फिर थर्ड टाइप का जो इस कैटेगरी में सम आ सकता है, थर्ड टाइप का जो इस कैटेगरी में सम आ सकता है वो कुछ ऐसा है। स्टेटमेंट में दे देगा, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। स्टेटमेंट में दे दिया कि इफ टोटल इनकम increases from rupees 5,000 crore to rupees 6,000 crore and savings increases from rupees 1,000 crore to rupees 1,500 crore, calculate MPC, calculate MPC। तो क्या बोल रहा है कि टोटल इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 5,000 to 6,000 CR एंड सेविंग्स इंक्रीजेस फ्रॉम ₹1000 to ₹1,500 CR, कैलकुलेट MPC बोला है। बहुत बार क्या होता है ना, फ्लो में अपने क्वेश्चन गलत रीड कर लेते हैं। MPC बोला है बट डेटा कंजम्पशन का नहीं दिया है, तो अपने फ्लो में MPS निकाल के छोड़ देते हैं, कॉमन मिस्टेक है गाइस। ठीक है, तो बी वेयर, रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। हियर अपन को पता है सोल्यूशन में कि चेंज इन इनकम क्या होगा 6,000 माइनस ₹5,000 दैट इज ₹1,000 CR। चेंज इन सेविंग्स क्या होगा ₹1,500 माइनस ₹1,000 CR विच इज ₹500 CR। देयरफॉर MPS निकाल सकते हैं ना, चेंज इन सेविंग्स बाय चेंज इन इनकम करके। चेंज इन सेविंग्स बाय चेंज इन इनकम करेंगे तो अपने को इजीली मिल जाएगा कि MPS क्या है सम में, है ना। अपने को इजीली मिल जाएगा MPS क्या है which is 500 by 1000, है ना, which is 0.5। अब we know MPC plus MPS is equal to 1, therefore MPC क्या होगा 1 minus MPS which is 1 minus 0.5 which is 0.5। तो ये हो गया आंसर, that's it, this is the answer। समझा? So even if you're getting as a statement base में क्या प्रॉब्लम है, read the sum आराम से, okay। नेक्स्ट है वो फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट बचपन में फिल इन द ब्लैंक्स करने में बड़ा मजा आता था, है ना। इधर भी चलो फिल इन द ब्लैंक्स। सो इनकम बाय गिवन टू अस 0 100 200 डैश डैश, ये डैश है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स करना है ये। फिर कंजम्पशन अपन को दिया हुआ है 80 140 डैश 240 260। फिर अपन को MPS दिया हुआ है, ठीक है। पहले में डैश है, दूसरे में 0.4 है, तीसरे में डैश है, चौथे में डैश है, नेक्स्ट में 0.8 है। और अपने को APS भी दिया है, पहला डैश है, फिर डैश मतलब ये इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स नहीं करना है, डैश है। 0 लेवल ऑफ इनकम पे MPS APS कुछ नहीं होता, इट्स डैश, ठीक है।
फिर एपीएस दूसरा का तुमको खुद निकालना है, कर दिया हुआ है 0.20 0.35। अब बोलो फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। ये सब जो डैशेस है ये फिल इन द ब्लैंक्स है। हाँ, अपन क्या कर सकते हैं, अपने को बेटर है ना अगर अपने एक सेविंग्स कॉलम बना ले तो दैट वुड बी प्रेफरेबल, राइट। अपने एक सेविंग्स कॉलम बना सकते हैं। लेट्स प्रिपेयर वन सेविंग्स कॉलम। सेविंग्स क्या होता है, इनकम माइनस कंजम्पशन। तो पहले केस में 0 माइनस 80 माइनस 80, फिर दूसरे केस में 100 माइनस 140, 100 माइनस 140 विच इज माइनस 40 विच इज माइनस 40। उसके बाद तो अपने को नहीं पता, क्योंकि उसके बाद तो चलो फिल इन द ब्लैंक शुरू हो गया। अच्छा, एपीएस का अपने ये फिगर भर सकते हैं, एपीएस का अपने ये वाला फिगर भर सकते हैं, क्योंकि एपीएस क्या होता है, एस बाय वाई। एपीएस क्या होता है, एस बाय वाई। तो इधर अपने भर सकते हैं -40 बाय 100, -40 बाय 100, -40 बाय 100, -0.4, -0.4, -0.4, ठीक है। नेक्स्ट में देखो एपीएस 0 है। अगर नेक्स्ट में एपीएस 0 है तो लॉजिकली सोचो एपीएस 0 कब हो सकता है। एपीएस 0 तब होगा ना जब सेविंग 0 होगा, क्योंकि एपीएस क्या होता है, एस बाय वाई। एपीएस क्या होता है, एस बाय वाई, है ना। एपीएस एस बाय वाई होता है। जब न्यूमरेटर 0 होगा तभी ना एपीएस का वैल्यू 0 होगा, विच मीन सेविंग्स 0 होगा। तो एपीएस जब 0 है मतलब सेविंग्स 0 है, सेविंग 0 है। इतना थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज लगाना पड़ेगा पर, ठीक है। सो एपीएस 0 है मतलब पक्का सेविंग 0 है। अगर सेविंग 0 है तो पक्का जितना इनकम था पूरा अपन कंजम्पशन पे स्पेंड कर दिया होंगे। लॉजिक तो यही बोलता है, तुम 1000 रुपया कमाया, तुम्हारा अगर इस मंथ में सेविंग 0 है मतलब तुम पूरा 1000 रुपया उड़ा दिया होगा, तभी ना सेविंग 0 है। तो पक्का सेविंग 0 है मतलब इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन विच इज योर इक्वल टू 200। तो अपना ये फिर इन द ब्लैंक्स भी हो गया। अपन फिर और क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट में देखो अब अपने क्या कर सकते हैं, अपने एनपीएस का वैल्यू फिल कर सकते हैं ना। एनपीएस क्या होगा, ये वाला एनपीएस क्या होगा, 0 माइनस ऑफ -40 डिवाइडेड बाय 200 माइनस 100। क्यों मैंने ऐसा बोला, क्योंकि एनपीएस क्या होता है, चेंज इन सेविंग्स बाय चेंज इन इनकम, चेंज इन सेविंग्स बाय चेंज इन इनकम। So your 0 minus of -40 divided by 200 minus 100 divided by 200 minus 100, ठीक है। So which is again equal to 0.4, 0.4, 0.4, ठीक है, which is 0.4, okay, 0.4 आ गया। अब और अपन क्या निकाल सकते हैं अपने, अच्छा हाँ अपने एक चीज कर सकते हैं, एपीएस दिया हुआ है, एपीएस दिया हुआ है तो इस पॉइंट पे अपने एपीसी निकाल सकते हैं। जब एपीएस दिया हुआ है, बिकॉज देयर इज नो अदर तरीका जिससे आप एस वाई ये सब का वैल्यू सीधे निकाल पाओगे। आपको एपीएस दिया हुआ है, आप एपीएस, क्योंकि एपीएस क्या होता है, एस बाय वाई, एस भी अननोन है वाई भी अननोन है, तो यू कैन नॉट फाइंड आउट एस बाय वाई करके कुछ भी, बट यू कैन डू वन थिंग, वी कैन फाइंड आउट एपीसी का वैल्यू एट दिस पॉइंट। वी नो एपीसी इस पॉइंट पे क्या होगा, एपीसी होता है 1 माइनस एमपीएस, तो इस पॉइंट पे एपीसी होगा 0.80। अब मैंने एपीसी क्यों निकाला पता है, क्योंकि एपीसी होता है सी बाय वाई। अपने को एपीसी का वैल्यू अगर पता चल गया तो अब और अपने को सी का वैल्यू पता है तो अपने वाई निकाल पाएंगे ना, अपने वाई निकाल पाएंगे। वाई कैसे निकलेगा, एपीसी होता है सी बाय वाई, एपीसी होता है सी बाय वाई, तो वाई क्या होगा, सी बाय एपीसी, वाई क्या होगा, वाई होगा सी बाय एपीसी। आप जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो ना प्लीज लिख देना, ठीक है। y it will be c by apc which is 240 by 0.80, 240 by 0.80 which is 300, which is 300। अब ये पता चल गया तो ऑटोमेटिकली सेविंग्स पता चल जाएगा, 300 minus 240 which is 60, एमपीएस पता चल जाएगा, 60 minus 0 by 300 minus 200 that is 60 by 100, 0.6, है ना, ऐसे करके पता चल जाएगा। फिर अपने अब तुम एक चीज ऑब्जर्व करो, इधर भी अपने सेम तरीका से, इधर भी अपने सेम तरीके से निकाल सकते हैं इनकम का वैल्यू। अगर एपी अपन को पता है एपीएस 0.35 है तो एपीसी होगा 0.65, एपीसी होगा 0.65, एपीसी क्या होता है 1 माइनस एपीएस, तो एपीसी होगा 0.65, 0.65,
ठीक है। सो अगेन सेम 260 डिवाइड बाय 0.65 2 इज इक्वल टू 400। सेम यही फॉर्मूला करके करेंगे, ये 400 आ गया। अब 400 माइनस 260 हो गया 140 हो गया। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए इतने पापड़ बेचने पड़े थे है ना। ये बच्चा वाला फिल इन द ब्लैंक्स नहीं रहा, बट गाइस सीरियसली इट्स इजी, बस फॉर्मूला क्विक करना चाहिए है ना। जस्ट टेक अ नोट ऑफ इट क्विकली। फिर चलो फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। तो अभी हमने कहा कैटेगरी 1 का ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं। आई होप थोड़े कंफर्टेबल हो गए हो, और नहीं हुए तो एक दो सम करेंगे और कंफर्टेबल हो जाओगे। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, अपने को y निकालना है और अपने को MPC निकालना है इस सम में। तो बहुत इजी, अभी तो इसके अंदर हम तोड़ सम कर चुके हैं ऑलरेडी। y क्या होगा, c प्लस एस डायरेक्ट है, y क्या होगा c प्लस एस, y इज इक्वल टू c प्लस एस 150, फिर 175 प्लस 75 250 350 450। ठीक है, फिर MPC क्या होगा, MPC क्या होगा, चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। चेंज इन कंजम्पशन कितना से हो रहा है 175 माइनस 100 75 बाय 250 माइनस 150 100। ठीक है, दैट इज 0.75। इधर सेम 250 माइनस 175 बाय 350 माइनस 100। तो ऐसे कर करके अपना MPC का वैल्यू भी निकल गया 0.075 हर केस में। ठीक है, तो ऐसे भी इजी सम्स भी आ सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट यही सब जॉनर में और एक दो सम करते हैं। क्वेश्चन में बोला है इफ नेशनल इनकम इज ₹50 करोड़ एंड सेविंग्स इज ₹5 करोड़, फाइंड आउट APC व्हेन, फाइंड आउट APC। ठीक है, ये एक पार्ट है। फिर बोला है व्हेन इनकम राइजेस to ₹60 crore and savings to ₹9 crore, what will be APC and MPS। ठीक है, सो क्या क्वेश्चन है, इफ नेशनल इनकम इज ₹50 CR, सेविंग्स 5 CR है, APC निकालो। ठीक है, ये एक पार्ट है, आपने पहले निकाल सकते हैं। गिवन नेशनल इनकम मतलब y ₹50 CR है ना, सेविंग्स ₹5 CR, निकालना क्या है APC। APC क्या होता है C by y, तो सबसे पहले C निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, तो अपन C निकालते हैं विच इज y माइनस s, इनकम माइनस सेविंग्स 50 माइनस 5 45। ठीक है, therefore इजीली निकल गया APC C by y which is 45 by 50 which is 45 divided by 50, 45 divided by 50 that is 0.9, that is 0.9। APC निकल गया 0.9। अब बोल रहे हैं कि इनकम 60 करोड़ तक चला गया, सेविंग्स 9 करोड़ तक चला गया, APC क्या होगा और MPS क्या होगा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। अब दूसरा पार्ट में अपने इजीली चेंज इन इनकम और चेंज इन सेविंग्स निकाल सकते हैं। चेंज इन इनकम क्या है 60 CR माइनस 50 CR which is 10 CR, and change in savings क्या है 9 माइनस 5 4 CR है ना। तो MPS निकल जाएगा, MPS निकल जाएगा चेंज इन सेविंग्स बाय चेंज इन इनकम। चेंज इन सेविंग्स पता है 4 है, चेंज इन इनकम पता है 10 है, इजीली निकल जाएगा।
कोई डाउट है? याद रखना क्वेश्चन में बोला है कि व्हेन इनकम राइजेस 2 एंड सेविंग्स राइजेस 2, मतलब बढ़ के इतना हुआ है, इतना से नहीं बढ़ा है, बढ़ के इतना हुआ है। ये सब कुछ कुछ चीजें हैं जो ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सो बढ़ के इतना हुआ है, या सो कितना आएगा 0.4। फिर और एक चीज निकालने बोला था, एपीसी, एपीसी निकालने बोले, ठीक है। अपने को इनकम तो पता है, न्यू इनकम 60 है, अपने को पता है न्यू सेविंग्स 9 है ना, तो अपने कंजम्पशन निकाल सकते हैं इनकम माइनस सेविंग्स करके, 51 CR आ रहे हैं। देयरफॉर एपीसी क्या होगा, देयरफॉर एपीसी क्या होगा, C/Y। एपीसी क्या होगा, C/Y। देखो फॉर्मूला हर जगह लिखो, जितना बार लिखना हो उतना बार लिखो फॉर्मूला। 51 डिवाइडेड बाय 60, 0.85 फॉर्मूलाज यू विल राइट, ओके। बाकी देखो डिनोट इनकम, सेविंग्स, कंजम्पशन, ये सब रुपीस से डिनोट करते हैं, तो रुपीस लिखना मत भूलना, ठीक है। फिर इस कैटेगरी का एक क्लास सम अपने डिस्कस करेंगे। ये सम ना तुमको लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स में आया था, लास्ट टू लास्ट ईयर ना, 2023 2022 के टर्म पेपर में आया था, सो वी कैन डिस्कस दैट, ठीक है। इजी सम था, ओके, चलो डिस्कस करते हैं। अपने को C का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। क्वेश्चन ये बोला है, क्वेश्चन है कि कैलकुलेट, एक्चुअली क्वेश्चन में ना सिर्फ ये 2 कॉलम्स दिए थे, क्वेश्चन में ना उन्होंने सिर्फ ये 2 कॉलम्स दिए थे, ठीक है। और फिर उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछा था कि कैलकुलेट एनपीएस एट ₹150 करोड़ ऑफ इनकम, ठीक है। और ये एक चीज उन्होंने पूछा था, और दूसरा उन्होंने पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ autonomous consumption, what is the value of autonomous consumption, okay, what is the value of autonomous consumption। तो ये तो चीज उन्होंने पूछा था, what is the value of autonomous consumption। अब इधर तुमको पता होना चाहिए कि autonomous consumption मतलब consumption at zero level of income, so autonomous consumption मतलब consumption at zero level of income, ठीक है। सो बेसिकली कंजम्पशन इस लेवल पे निकालना है। आई वांट टू फाइंड आउट एनपीएस ना, एनपीएस 150 करोड़ ऑफ इनकम है, ठीक है। सो एनपीएस एट ₹150 CR ऑफ इनकम विल बी हाउ मच, चेंज इन सेविंग्स बाय चेंज इन इनकम। सो 150 CR में निकालना है, चेंज इन सेविंग्स क्या होगा, 30 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 150 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 150 माइनस 100 which is 30 by 50, which is 30 by 50, ठीक है, which is 0.6। इजीली निकल गया 150 CR पे निकालना था, 150 CR पे क्या होगा, चेंज इन सेविंग्स दैट इज 30 माइनस 0 डिवाइड बाय चेंज इन इनकम 150 माइनस 100, 30 by 50, ठीक है। दूसरा वेरी इजी, और जीरो लेवल ऑफ इनकम पे एनीवे कंजम्पशन आप कैसे निकालते हो, इनकम माइनस सेविंग्स करके, इनकम माइनस सेविंग्स करके। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम में क्या होगा, 0 माइनस ऑफ माइनस 20, 0 माइनस ऑफ माइनस 20, 0 माइनस ऑफ माइनस 20 which is 20। सो ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या हो गया, ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या हो गया, लिख देना, पता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, कंजम्पशन एट जीरो level of income, है ना, which is equal to how much guys, 20, which is equal to how much, 20 हो गया। सो बोर्ड क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए तो फिर तो मस्त है ना। सो ये था गाइस फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सम्स, हमने फर्स्ट कैटेगरी में 7 सम्स किया टोटल, राइट। तो वो 7 सम्स में आपको बेसिक वैरायटी समझ में आया कि एपीएस एपीसी ये सभी निकालने बोला था घुमा फिरा के, ये सभी आपको निकालने बोला था घुमा फिरा के,
ठीक है। सो वो एक काइंड ऑफ सम्स आता है। ओके, फिर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सम जो अपन करेंगे वो इक्वेशन बेस्ड सम्स रहेगा, जहाँ तुमको कंजम्पशन इक्वेशन दे सकता है, सेविंग्स इक्वेशन दे सकते हैं, ये सब इक्वेशन दे सकते हैं। सो वो हो गया हमारा कैटेगरी 2 सम्स। ओके, सो आज अपने ना शुरू करते हैं। लेट अस बिगिन विद कैटेगरी 2 सम्स। सो सेकंड कैटेगरी सम्स में इक्वेशन बेस्ड सम्स रहेगा, ठीक है, इक्वेशन बेस्ड सम्स रहेगा, इक्वेशन बेस्ड सम्स रहेगा। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट इक्वेशन बेस्ड सम। इसमें तुमको ना वो कंजम्पशन इक्वेशन, सेविंग्स इक्वेशन, ये सब बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। सो हमको बोल रहा है विद द हेल्प ऑफ सेविंग्स फंक्शन, विद द हेल्प ऑफ सेविंग्स फंक्शन s equal to -20 plus 0.3y, calculate consumption expenditure at income level of ₹1000 crore, ठीक है। अब देखो हम लोग को सेविंग्स फंक्शन दे दिया है, बट हम लोग को निकालने क्या बोले हैं, निकालने कंजम्पशन बोले हैं। वी हैव बीन गिवन विद द सेविंग्स फंक्शन, बट वी हैव बीन आस्क्ड to find out consumption when the level of income is how much, when the level of income is ₹1000 CR, ठीक है। so very easy, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेविंग्स फंक्शन, चलो let us begin with the solution. savings function given is what, -20 plus 0.31। अब याद है सेविंग्स फंक्शन को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इस फॉर्म में। सेविंग्स फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form s is equal to -a plus 1 minus b into y। याद है सेविंग्स फंक्शन, ये सेविंग्स फंक्शन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं जहां आप देखो a के बदले 20 है, सो वी कैन देयरफॉर से देयरफॉर a इज व्हाट, a का वैल्यू 20 है और 1 माइनस b का वैल्यू 0.3 है, देयरफॉर b क्या होगा 1 माइनस 0.3 विच इज 0.7, 1 माइनस 0.3 विच इज 0.7। अब क्वेश्चन में बोला है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालो, क्वेश्चन में बोला है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालो। देयरफॉर अपने क्या कर सकते हैं, अपने को पता है ना कंजम्पशन इक्वेशन कैसा दिखता है, कंजम्पशन फंक्शन कैसा दिखता है, कंजम्पशन फंक्शन कैसा दिखता है, c इज इक्वल टू a प्लस बी बाय। देयरफॉर अपन बोल सकते हैं c इज इक्वल टू a का वैल्यू पता है 20 है, b का वैल्यू पता है 0.7 है इंटू y, और y का वैल्यू हमको दे दिया है तो हम वो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y in consumption function, substituting the value of y in consumption function, we get c is equal to 20 plus 0.7 y, which is 20 plus 0.7 into 1000, है ना, which is equal to 20 plus 700, this is equal to ₹720, which is equal to ₹720, पता चल गया। Therefore consumption expenditure is ₹720 crore। समझ में आया? So if you get such kind of questions जहां आपको सेविंग्स फंक्शन दे दे या जहां आपको कंजम्पशन फंक्शन दे दे, आप दूसरा वाला निकाल सकते हो। इधर जैसे आपको क्या दिया था, इधर आपको उन्होंने सेविंग्स फंक्शन दिया था, आप सेविंग्स फंक्शन से आप इजीली कंजम्पशन फंक्शन निकाल सकते हो, आप कंजम्पशन फंक्शन से इजीली सेविंग्स फंक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे इधर सेविंग्स फंक्शन दिया और पूछा कंजम्पशन है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल लेंगे कंजम्पशन फंक्शन, फिर हम y का वैल्यू पुट कर लेंगे। ये एक तरीका है। However, और एक तरीका है सम को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका बहुत जन ये भी करते हैं कि सेविंग्स फंक्शन में ना डायरेक्टली y का वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या बोला मैंने, सेविंग्स फंक्शन में पता है ना y दिया है सम में, कुछ बुद्धि ना चले तो y का वैल्यू तो पुट कर सकते हो ना, सेविंग्स पता चल जाएगा। सेविंग्स पता है, इनकम पता है, कंजम्पशन निकाल ही लोगे ना, y माइनस s करके कंजम्पशन तो निकाल ही लोगे y माइनस s करके। तो वो भी एक तरीका है
जिससे तुम निकाल सकते हो, ठीक है। सो ये अगर आपको लेंथी लग रहा है ये प्रोसेस, तो एक शॉर्टकट प्रोसेस भी है, आंसर सेम ही आएगा। दूसरा प्रोसेस क्या है, सेविंग्स फंक्शन में y का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है, विच इज 1000। सेविंग्स निकल गया, इनकम पता ही है 1000 है, कंजम्पशन क्या होगा, इनकम माइनस सेविंग्स, कंजम्पशन क्या होगा, इनकम माइनस सेविंग्स, और निकल जाएगा, ठीक है। So now I'm going to continue. So this is going to be our question 9. Okay. Now we are going to continue with such kind of sums only for the time being. Now see different type of sum. So here they have given us that on the basis of consumption function C equal to 120 plus 0.4y. Answer number 1, derive savings function. Point B, determine savings at income level of rupees 500 crore. And next, at what level of income savings become zero. So in such kind of sums, you know what, you need to know about the consumption equation, about the savings equation and all, which you are thoroughly aware of, right? So yesterday we did that consumption function is a plus by, or you can also write it in the form c bar plus by, and savings was minus a plus 1 minus b into y. Okay, now here you can see in the question that consumption function is given to us, that is c is equal to 120 plus 0.4y, right? And we are asked to derive savings function. So can we say this, let's begin the solution. Can we say this, that consumption function, given consumption function is what, c equal to 120 plus 0.4y, can be expressed in the form c equal to a plus b by. अपने को ये कंजम्पशन इक्वेशन दिया हुआ है, अपने ये कंजम्पशन इक्वेशन को अपने कंजम्पशन फंक्शन से रिलेट कर सकते हैं ना, अपने कंजम्पशन इक्वेशन से रिलेट कर सकते हैं। वी नो हमारा जो कंजम्पशन इक्वेशन होता है वो क्या होता है, a प्लस बी वाई। सो यहाँ से आप वैल्यूज निकाल सकते हो, लाइक फ्रॉम हियर आई कैन से दैट a is 120 and b is 0.4. a is 120 and b is 0.4. Now our first question is what, कि अपन को सेविंग्स निकालना है जब इनकम लेवल इज रुपीज 500 CR। तो पहले what it is better for us is to derive a savings equation या savings function, ठीक है। So savings function या equation लिखो, एक ही बात है, can be expressed as s is equal to minus a plus 1 minus b by, ठीक है। अब a का तो वैल्यू पता है ना 120 है, और b का वैल्यू 0.4 है, तो 1 minus 0.4 into y which is equal to 120 plus 0.6 y, 120 plus 0.6 y. So this is how savings function look like. अब हमें y का वैल्यू दे दिया है, तो हम y का वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि what is going to be my savings. Okay, so therefore we can write substituting the value of y rupees 500 CR. Therefore savings will be minus 20 plus 0.6 into 500 minus 120 plus 0.6 into 500, which is equal to minus 120 plus 300, which is equal to minus 120 plus 300, which is equal to 180 rupees 180. Okay, so we did the first part जहाँ हमें बोला था कि सेविंग्स निकालो, ओके, जहाँ हमें बोला था सेविंग्स निकालो अगर हमारा इनकम 500 CR है, तो वो हमने निकाल लिया। फिर नेक्स्ट बोलो क्या बोल रहे हैं कि एट अच्छा फर्स्ट वाज जस्ट टू डिराइव सेविंग्स फंक्शन, सेकंड पार्ट में बोला था कि इनकम 500 है तो सेविंग्स क्या होगा, तो ये रहा हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। ओके, थर्ड पार्ट पूछे व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स बिकम जीरो। नाउ देखो यहाँ ये लोग एक थ्योरी पार्ट घुसा दिए है ना, तुम्हें बताना है कि कौन से इनकम पे सेविंग्स जीरो होता है। नाउ गाइस लॉजिकली सोचो, सेविंग जीरो कब होगा, सेविंग जीरो तभी होगा ना जब जितना कमाया उतना उड़ा दिया है ना, तो सेविंग जीरो कब होगा, व्हेन y will be equal to c, right? So for savings to be zero y should be equal to c. क्लियर, इसमें एकदम बेसिक नॉलेज है, जितना कमाया उतना उड़ा देगा, कुछ सेव नहीं करेगा तो सेविंग जीरो होगा ना। तो C तो अपन को पता है ना 120 प्लस 0.4 है,
सी का हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, सी के बदले हम उसका फंक्शन लिख सकते हैं 120 प्लस 0.4y, ठीक है। अब y के लिए सॉल्व कर लो, सॉल्व फॉर y, ठीक है। सो y क्या होगा 120 बाय 0.6, y क्या होगा 120 डिवाइडेड बाय 0.6, सो 120 डिवाइडेड बाय 0.6 व्हिच इज इक्वल टू रुपीस 200 CR। तो समझ में आया। Therefore, कौन से लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग जीरो होगा, प्लीज प्रॉपर स्टेटमेंट में लिखना कि एट अ इनकम लेवल ऑफ रुपीज 200 CR सेविंग्स इज इक्वल टू जीरो। क्लियर। सो ये था उसी कैटेगरी का सम जिसमें तुमको कंजम्पशन फंक्शन दे दिया, उसके बेसिस पे तुमको बोला सेविंग्स फंक्शन निकालो, उसके बेसिस पे तुमको बोलेगा कि सेविंग्स का वैल्यू निकालो, इन दैट केस इनकम दे देगा, और फिर तुमको एक ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बता सकता है जहां दे कैन टेल यू कि जैसे इधर ये था कि सेविंग जीरो कब होगा, मतलब सेविंग जब जीरो होगा तो व्हाट विल बी द लेवल ऑफ इनकम। यू कैन गेट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन गाइस, ओके, जहां कॉन्सेप्चुअली भी बता रहे बोलो क्वेश्चंस एंड जहां तुमको न्यूमेरिकली भी सॉल्व करना होगा, ओके। अब इसी जॉनर में लेट्स प्रैक्टिस अ नेक्स्ट वैरायटी ऑफ सम। I hope this is clear. Next में तुमको कंजम्पशन फंक्शन दे दिया गया है, ठीक है। कंजम्पशन फंक्शन given to us is what, c is 20 plus 0.8y. They have asked us to determine level of income when APC is equal to 1. Now you remember कि APC क्या होता है, average propensity to consume, हाँ full form। उसका मतलब क्या होता है, it is the ratio of consumption to income. So APC अपने को पता है, अपने को y निकालना है, ठीक है। अपने को पता है APC क्या होता है, APC का वैल्यू क्या है 1 है, बट APC क्या होता है c by y which is equal to 1. Therefore c is equal to y. Can we write that? APC 1 कब होगा, जो c का वैल्यू है वही y का वैल्यू होगा, तब ना APC 1 होगा। APC 1 कब होगा, जब जो c का वैल्यू है वही y का वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल 20 by 21 होता है ना, तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वैल्यू सेम होगा तभी 1 हो सकते हैं। सो APC 1 मतलब c is equal to y, APC 1 मतलब c is equal to y। अब ये अगर तुम आइडेंटिफाई कर लिए, सम में कुछ नहीं है, सम में कुछ भी नहीं है, therefore अपन को c दे दिया है, c is what 20 plus 0.8y. Therefore can we say 20 plus 0.8y is equal to y. Therefore 20 is equal to y minus 0.8y is equal to 20 is 0.2y. Therefore y क्या होगा 20 by 0.2, y क्या होगा 20 divided by 0.2. Therefore y क्या हो गया rupees 100. Clear? So you can also get such kind of question. ISC को भी मिल सकता है and CBSE को भी मिल सकता है ऐसा टाइप का questions, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ अपने को दे दिया है, ये कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। अपने को कंजम्पशन फंक्शन दे दिया है, अपने को कंजम्पशन फंक्शन दे दिया है, c is equal to 150 plus 0.80y. Okay, we have been provided with investment which is 2000 CR. Okay, and we have been asked to calculate number 1 equilibrium level of income, number 1 equilibrium level of income, ठीक है। number 2 consumption at equilibrium level of income, consumption at equilibrium level of income, number 3 savings at equilibrium level of income. Commonly asked question of this chapter, तुमको consumption function दे दिया है, ठीक है। You have been provided with the consumption function 150 plus 0.80y, I का वैल्यू दे दिया है, तुमको बोला है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालो, ठीक है, एंड देन कंजम्पशन निकालो एंड सेविंग्स निकालो, ठीक है। अब गाइस याद है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालने के लिए अपने AD इक्वल टू AS करते थे, AD इक्वल टू AS या S इक्वल टू I करते हैं, और याद है AD क्या होता था C प्लस I, AD क्या होता था C प्लस I, और AS को डिनोट किससे करते थे Y से। सो अगर अपने AD इक्वल टू AS कर दे, AD मतलब C प्लस I और AS मतलब Y इनकम, सो जब C प्लस I इक्वल टू Y करेंगे तो Y का वैल्यू मिल जाएगा, एंड दैट इज व्हाट द फर्स्ट पार्ट इज आस्किंग, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालो, ठीक है। सो इसका स्टेटमेंट में तुम ये लिख सकते हो, we know at equilibrium level of income
इनकम AD इज इक्वल टू AS, ये कंडीशन लिखना होगा। हमें पता होना चाहिए कि फॉर AD इक्वल टू AS होता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के लिए। नाउ AD क्या होता है? AD होता है C प्लस आई, क्योंकि आप 2 सेक्टर मॉडल कर रहे हो। AD होता है C प्लस आई इक्वल टू AS, AS होता है Y। अब C क्या है? Given C is given to us, no? C is what? 150 plus 0.80y, and I is also given to us, that is 2000 is equal to Y, is equal to Y. Now you guys have to solve for Y. अपन को क्या करना होगा? अपने को you have to solve for Y, ठीक है? चलो let's do it quickly. So 2150 हो गया y minus 0.80y और 2150 हो गया 0.20y, तो y क्या होगा? 2150 divided by 0.20, 2150 divided by 0.20, which is 10,750, which is 10,750, ठीक है? Therefore हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकल गया, हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकल गया। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या है? 10,750। I hope it's easy peasy for you guys, right? ठीक है? Therefore इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालने बोला है, मतलब y का वैल्यू निकालने बोला है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालने बोले मतलब y का वैल्यू निकालने बोला है, ये समझो। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालने बोला है मतलब y का वैल्यू निकालने बोला है, ठीक है? Therefore इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम is rupees 10,750 CR, ओके? सेकेंड पॉइंट क्या बोला था? कंजम्पशन निकालना है, ठीक है? कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, कंजम्पशन फंक्शन एक निकल गया तो सब निकल जाएगा। कंजम्पशन फंक्शन क्या है? 150 प्लस 0.80y। Therefore अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y in consumption function, substituting the value of y in consumption function, ठीक है? C is equal to 150 plus 0.80 into y, that is 10,750, और सब्स्टिट्यूट कर दो, इतना तो इजी है। 10,750 into 0.80, that is 8,600, 8,600 plus 150, that is 8,750 CR, ठीक है? थर्ड क्या बोला है? सेविंग्स निकालो। अब सेविंग्स निकालने का पता है, दो तरीके हैं इधर। से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तो वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट सेविंग्स 2000 होगा, ठीक है? दैट्स वन तरीका कि एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम S इक्वल टू I होता है, S इज इक्वल टू I दिया हुआ है सब में, गिवन I is rupees 2000, given I rupees 2000 है तो S निकल गया rupees 2000। ये एक तरीका है, या तुम ये भी कर सकते हो S y minus C कर सकते हो। y कितना है? 10,750, C कितना है? 8,750, फिर भी 2000 ही आ रहा है। सो इट्स अपॉन यू, जो स्ट्राइक कर जाए उस पर, ठीक है? यू कैन प्रोसीड विद एनी ऑफ दी अबव। सो एक ऐसा काइंड ऑफ सम भी यू कैन गेट, ये कॉमनली है, स्पेशली कॉमन काइंड ऑफ सम है, आई मीन वेरी कॉमन सम फॉर बोथ ISC एंड CBSE, ओके? चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सम। नेक्स्ट टाइप ऑफ सम में जैसे हम लोग को पिछले वाले सम में कंजम्पशन दिया था और इक्विलिब्रियम इनकम एंड सेविंग्स निकालना था। अब हमें सेविंग्स फंक्शन दे दिया है, हमें उससे कंजम्पशन वगैरह निकालना है, तो वो वैसे भी आ सकते हैं। या तो सी दे हैव टू फंक्शंस, नो, योर either they will give you consumption function or they are going to give you savings function, right? So here if they have given you savings function, okay, so savings function is given to us -40 plus 0.25y and investment दे दिया है 100 CR है, बोला है डिटरमाइन करो नंबर 1 इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है? नंबर 2 level of consumption at equilibrium level of consumption at equilibrium level, and number 3 savings at equilibrium level of income। तो तीन चीज बोला है, ठीक है? सेम तरीके से प्रोसीड करते हैं। अब इधर क्या, इधर अपने ये कर सकते हैं, S दिया है I दिया है, जैसे ही समझ जाना S दिया है I दिया है, इक्विलिब्रियम निकालने बोला है, तो यू नो ना दो अप्रोच होते हैं, कहते हैं ADAS और दूसरा अप्रोच क्या होता है? SI अप्रोच होता है। तो इधर अपन क्या कर सकते हैं, इधर अपने S इक्वल टू I कर सकते हैं,
इधर अपने s इक्वल टू आई करके सॉल्व कर सकते हैं, y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिखो एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम s इज इक्वल टू आई, ठीक है। s क्या है -40 प्लस 0.25y, i क्या है 100, ठीक है। therefore 0.25y इज इक्वल टू 100 प्लस 40 और 0.25y इज इक्वल टू 140 और y इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 0.25 और y इज इक्वल टू व्हाट 140 डिवाइडेड बाय 0.25 व्हिच इज कमिंग 560। आपने को पता चल गया पहला जो पूछा था कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। सो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हियर इन दिस केस इज व्हाट रुपीस 560 CR। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हियर इन दिस केस इज व्हाट रुपीस 560 CR। तो 560 CR इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकल गया। डन विद द फर्स्ट पार्ट। पार्ट 2 बोला है कंजम्पशन निकालो, कंजम्पशन निकालो, ठीक है। अब हम लोग सेविंग्स फंक्शन से कंजम्पशन फंक्शन डिराइव कर सकते हैं ना। सेविंग्स फंक्शन किस फॉर्म में होता है? सेविंग्स फंक्शन इज इन द फॉर्म s इज इक्वल टू -a प्लस 1 माइनस b इंटू y, है ना, विच इज इक्वल टू -40 प्लस 0.25y, है ना। तो अपन को इससे a का वैल्यू पता चल जाएगा, a का वैल्यू है 40, है ना, और 1 माइनस b का वैल्यू 0.25 है, तो b कितना होगा? b कितना होगा? 0.75 होगा। 1 माइनस 0.25 कर दो, b क्या होगा? 0.75 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब अपने को a का वैल्यू पता है, b का वैल्यू पता है, तो अपने कंजम्पशन निकाल सकते हैं। अपने क्या कर सकते हैं? अपने इजीली कंजम्पशन निकाल सकते हैं। सो वी कैन इजीली फाइंड आउट कंजम्पशन, अपने कंजम्पशन फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखो कंजम्पशन फंक्शन विल बी c is equal to a plus b by which is equal to a का वैल्यू क्या है 40, b का वैल्यू क्या है 0.75y, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y in consumption function, substituting the value of y in consumption function we get 40 plus 0.75 into 560, ठीक है। So 0.75 into 560 that is 490 plus 40, अपने को पता चल गया कंजम्पशन क्या है 460 CR। तुम ये भी तरीके से कर सकते हो, एंड यू हैव वन और तरीका। यू हैव तुमको y का वैल्यू पता है, y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो सेविंग्स फंक्शन में, तो s का वैल्यू पता चल जाएगा। एंड s का वैल्यू पता चल गया, y का वैल्यू पता है, तो c क्या होगा y माइनस s, c क्या होगा y माइनस s। सो दैट इज ऑल्सो वन वे बाय विच वी कैन फाइंड आउट कंजम्पशन फंक्शन, अगर ये टफ लग रहा है। ओके, देयर आर टू वेज। थर्ड पार्ट क्या बोला था? सेविंग्स निकालो, ठीक है। अब इनकम पता है, कंजम्पशन पता है, आराम से सेविंग्स निकाल लेंगे, इनकम माइनस कंजम्पशन करके, ठीक है। सो 560 माइनस 460 दैट इज रुपीस 100 CR। सो ये भी एक तरीका है जिससे यू कैन फाइंड आउट सेविंग्स, एंड देयर इज वन मोर वे जिससे यू कैन फाइंड आउट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो सेविंग्स वाले फंक्शन में, y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो भी सेम आंसर रहेगा। तो दिस आल्सो मेथड यू कैन फॉलो, व्हिचएवर क्लिक्स यू एट दैट टाइम, गो विद दैट। ओके, सो ये था गाइस सेकंड कैटेगरी ऑफ सम्स which was all about consumption and savings function, right? जहाँ आपको consumption savings function दे दिया, equilibrium income निकालने बोला, और भाई C और S का घुमा फिरा के वैल्यू निकालने बोला, तो यहाँ आपको ADAS और SI का काम भी आया, ठीक है। अब जो थर्ड कैटेगरी ऑफ सम्स होता है ना, वो होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का सम्स। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर CBSE का तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। कहीं ना कहीं either 1 mark वाले क्वेश्चन में they are going to give, or 3 or 4 marks वाले क्वेश्चन में they are going to give, but that is their favorite part. And for ISC anything can come, ठीक है। तो for CBSE that is something which is very important, ठीक है। ISC can expect 1 mark question from there, okay। यहाँ और एक टाइप का क्वेश्चन होते हैं जो लास्ट में we are going to discuss, ISC में वैसे क्वेश्चंस आए हैं, तो ISC people can expect that kind of question here also, ठीक है। बट वैसा टाइप का क्वेश्चन इस बार थोड़ा कम चांस है फॉर ISC, बिकॉज लास्ट टाइम ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आ चुका है, ओके। सो एनीवे लेट्स बिगिन। सो थर्ड कैटेगरी ऑफ सम्स में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से रिलेटेड है। सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है चेंज इन द इनकम ड्यू टू चेंज इन द इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? चेंज इन द इनकम ड्यू टू चेंज इन द इन्वेस्टमेंट। सो वो एक फॉर्मूला है
दूसरा फॉर्मूला था K दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस MPC, और तीसरा फॉर्मूला था K इज इक्वल टू 1 बाई MPS। सो 3 फॉर्मूला जिससे आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, सो लेट अस प्रोसीड। तो एकदम बेसिक सम से शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। ठीक है, एकदम बेसिक सम से शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। If value of MPC is 0.6, 0.75, calculate investment multiplier, and MPS। ठीक है, बहुत ही बेसिक सम है, 1 मार्क टाइप का क्वेश्चन है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालो, MPC दिया है, MPC दिया है तो सिंपल है, वी नो K मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सो अपन यूजुअली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को K से डिनोट करते हैं। सो K इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस MPC इज 1 बाय 1 माइनस 0.6 दैट इज 1 बाय 0.4। ठीक है, विच इज कमिंग टू बी 2.5। तो K का वैल्यू 2.5 है, K यूनिट फ्री है। ठीक है, K इज यूनिट फ्री, इट्स 2.5। ओके, रुपीस कुछ नहीं लिखना, K 2.5 आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट में MPC का वैल्यू क्या है 0.75। ठीक है, तो दैट इज 1.1 by 0.25 which is 4। so K का वैल्यू 4 आ गया। सो लाइक दिस K का वैल्यू तुम फाइंड आउट कर सकते हो। अब इन्होंने MPS भी निकालने बोला है, सो इट्स अ बोनस काइंड ऑफ क्वेश्चन। MPC पता है तो MPS निकल जाएगा, MPS निकल जाएगा, MPC पता है तो MPS निकल जाएगा। MPS क्या होता है 1 माइनस MPC। तो ठीक है, हर केसेस में MPS निकालेंगे। पहले केस में MPS क्या होगा 1 माइनस MPC इज 1 माइनस 0.6 विच इज 0.4। सेकेंड केस में MPS होगा 1 माइनस MPC 1 माइनस 0.75 विच इज 0.25। ठीक है, तो दैट इज हाउ, ये बहुत ही बेसिक सम है, 1 मार्क का सम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टाइप का ऐसा आ सकता है कि कैलकुलेट इंक्रीज इन इनकम, कैलकुलेट इंक्रीज इन इनकम व्हेन increase in investment, when increase in investment is rupees 10 CR and value of multiplier is 2.5। पहला बात, जो चीज दे दिया है, जो चीज दे दिया है वो सब चीज नोट डाउन कर लो, जो चीज यहाँ गिव इट टू अस नोट डाउन। ठीक है, अब हमको निकालना है इंक्रीज इन इनकम। अपने को इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट दे दिया, मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट दे दिया 10 CR। अपने को इतना पता है ना कि इन्वेस्टमेंट चेंज होने से इनकम चेंज होगा। सो अपने को चेंज इन इन्वेस्टमेंट दे दिया 10 CR और अपने को वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर दे दिया है 2.5। ठीक है, सो सब कुछ जो दे दिया है थाली में रख दिया। अब क्या है, अब बस कुछ नहीं, खाते रहना है, खाओ। तो K का फॉर्मूला पता है, सब कुछ पढ़ा है तो पता है कि कौन से चीज को किसके साथ मिक्स करना है, राइट। K क्या होगा डेल्टा y बाई डेल्टा I। K है 2.5, डेल्टा y निकालना है, डेल्टा I 10। ठीक है, therefore डेल्टा y क्या हो गया 2.5 into 10, therefore डेल्टा y is 25, therefore डेल्टा y is rupees 25 CR। इसका मतलब अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट 10 CR से बढ़ रहा है तो इनकम 25 CR से बढ़ रहा है। तो ऐसे भी काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो बेसिकली 3 ही फॉर्मूला को घुमा फिरा के आएगा, एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला और एक फॉर्मूला K इज इक्वल टू 1 बाई MPS। ये 3 फॉर्मूला के अलावा घुमा फिरा के नहीं आते। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ इट, टेक अ नोट ऑफ इट। चलो नेक्स्ट काइंड ऑफ सॉल्व करते हैं। Next what they are saying कि if an increase of rupees 4,000 in investment results to an increase in income of rupees 20,000, calculate MPS। क्या बोला है, अगेन जो दे दिया लिख दो। डेल्टा I दे दिया है ना 4,000 है, डेल्टा y भी दे दिया है रुपीज 20,000, निकालने MPS बोले।
गाइस जब अपने को डेल्टा आई डेल्टा वाई दिया है तो अपने को एक चीज तो पता है कि के का वैल्यू निकाल सकते हैं एंड दिस इज द सम ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई राइट सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के क्या होगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई विच इज 20,000 बाय 4,000 विच इज इक्वल टू 5 तो के का वैल्यू पता चल गया इट्स 5 ठीक है अब के का वैल्यू 5 है अपन को पता है ना के इज इक्वल टू 1 बाय एमपीएस तो के का वैल्यू पुट कर दे 1 by MPS therefore MPS क्या होगा 1 by 5 1 by 5 MPS क्या होगा 1 by 5 is this clear MPS will be 1 by 5 which is equal to 0.2 which is equal to 0.2 ठीक है सो ऐसा टाइप ऑफ सम भी आ सकता है जैसे इधर MPS बोला MPC भी निकालने आ सकते हैं समझ रहे हैं जहाँ 2 बार तुमको फॉर्मूला का यूज करना पड़ सकता है तो अगेन इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी जब तक तुमको फॉर्मूला याद राइट फिर चलो लेट्स डिस्कस बोला है इट इज प्लान टू मेक an investment of rupees 1000 CR in economy ठीक है अब बोल दिया है how much will be increase in income when MPS is 0.4 अब इधर क्या दे दिया है इधर अपने को MPS दे दिया है 0.4 है और अपने को चेंज इन इन्वेस्टमेंट दे दिया है 1000 CR है अब इधर अपने को चेंज इन इनकम निकालना है तो उल्टा अब हम लोग क्या करेंगे पता है के का वैल्यू निकालेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला के का वैल्यू पता चल गया उसके बाद ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे क्योंकि अगर MPS दिया है तो अब तो इधर ऑपोजिट तरीका यूज करना होगा ना तो अपन ये लिख सकते हैं के क्या होगा 1 by 0.4 के क्या होगा 1 by 0.4 that will be k which is 2.5 k 2.5 है डेल्टा i पता ही है therefore k का y फॉर्मूला है ना 1 by डेल्टा y by डेल्टा i so k का फॉर्म k है 2.5 डेल्टा y अपने को निकालना है डेल्टा i 1000 है ना therefore डेल्टा y क्या होगा 2.5 into 1000 डेल्टा y क्या होगा 2.5 into 1000 which is how much 2500 therefore delta y is rupees 2500 CR तो अगर इन्वेस्टमेंट 1000 CR से बढ़ रहा है तो इनकम कितना से बढ़ रहा है 2500 CR तो ऐसे काइंड ऑफ सम्स भी आ सकते हैं ठीक है ऐसे काइंड ऑफ सम्स भी यू कैन गेट अब इसी टाइप का यू नो सम थोड़ा और घुमा फिरा के दे सकते सो वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड गाइस okay almost in the words of covering all the possible sums of this chapter okay and I hope थोड़ा बहुत it's clear to you guys okay चलो फिर करते हैं इधर बोला है an increase in investment by rupees 400 CR leads to increase in national income by rupees 1600 CR calculate MPC अब चलो भाई निकालने बोल दिया MPC निकालने बोल दिया क्या बोला है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट अब इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट दिया है 400 CR इंक्रीज इन इनकम दिया है 1600 CR ऑब्वियसली और MPC निकालने बोल ठीक है डेल्टा या डेल्टा वाई दिया तो के निकाल सकते हैं है ना के क्या होगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई विच इज 1600 by 400 which is 4 we know k is equal to 1 minus MPC that is 4 is equal to 1 by 1 minus MPC so 4 into 1 minus MPC is equal to 1 so 4 minus 4 MPC is equal to 1 अब नॉर्मली सॉल्व करो तो 4 MPC equal to 3 हो जाएगा ठीक है therefore MPC क्या होगा 3 by 4 which is 0.75 निकल गया 3 by 4 which is 0.75 so you can also get such kind of question जहाँ MPC बोला है अभी ऐसा सम किए थे जहाँ MPS बोला था अगर MPC बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं फॉर्मूला याद है तो हम लोग कर ही सकते हैं सम राइट ठीक है अब ये जो क्वेश्चन है ये अभी CBSE के सैम्पल पेपर में था सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन आल्सो ओके इट वाज इन CBSE सैम्पल पेपर क्वेश्चन था फॉर अ hypothetical economy government incurs an investment expenditure
of rupees 1000 CR if value of MPS falls from 0.25 to 0.10. Calculate value of increase in income due to change in value of MPS. हमको क्वेश्चन में क्या निकालने बोले? वी आर बीइंग आस्क्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन इनकम. हम लोग को इंक्रीज इन इनकम निकालना है. अब इस सम में क्या हो रहा है? इस सम में एमपीएस चेंज हो रहे हैं. पहले एमपीएस कितना था? 0.25. अब एमपीएस कितना है? 0.10. अब तुमको पता है एमपीएस घट रहा है. अगर थ्योरेटिकली याद है तो याद होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू एमपीएस, है ना. तो अगर एमपीएस घट रहा है, पक्का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वैल्यू बढ़ेगा, पक्का इनकम बढ़ना चाहिए. ठीक है ना. लेट्स डू द सम. अब हम लोग ऐसे काइंड ऑफ सम्स को कैसे अप्रोच कर सकते हैं कि अपने दो सिचुएशन लेंगे. पहले जब एमपीएस 0.25 है तो के का वैल्यू क्या है और इनकम का वैल्यू क्या है. ठीक है. और जब एमपीएस 0.10 होगा तो के और डेल्टा वाई का वैल्यू क्या होगा. ठीक है. तो सबसे पहले व्हेन एमपीएस इज 0.25, के क्या होगा? 1 by MPS, दैट इज 1 by 0.25 विच इज 4. और अपने को चेंज इन इन्वेस्टमेंट पता है ना, सम में कितना है? 1000 CR. Therefore can we say this k is what? Delta y by delta I. Therefore 4 into 1000 is equal to delta y. तो डेल्टा y क्या? चेंज इन इनकम कितना हुआ? 4000 जब एमपीएस का वैल्यू 0.25 था. ठीक है. अब अगर एमपीएस का वैल्यू नाउ व्हेन एमपीएस इज 0.10 तो मेरा तो के का वैल्यू क्या आएगा? 1 by MPS 1 by 0.10 which is 10. ठीक है. Therefore के क्या होगा? डेल्टा y by डेल्टा I which is 10 into change in investment. तो एक ही है ना, इन्वेस्टमेंट में चेंज तो एक ही है, 1000 is equal to डेल्टा y. Therefore डेल्टा y क्या हो गया? 10,000. डेल्टा y क्या हो गया? 10,000 CR. इधर डेल्टा y कितना था? 4000. इधर डेल्टा y कितना है? 10,000. तो मैंने बोला था ना इनकम इंक्रीज होगा एंड दैट वी कैन सी. अपना देखो कमेंट क्या होगा? ड्यू टू फॉल इन एमपीएस देयर इज एन इंक्रीज इन इनकम. ठीक है. बाय रुपीज 6000 CR. कैसे निकला? 10,000 माइनस 4,000. समझ में आया? तो ऐसा सीधे पेपर में था, सैम्पल पेपर में था ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन. बट अगेन इट्स वेरी इजी, राइट. देख लो विदाउट आई डोंट थिंक होएगा. हाँ. और लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो आईएससी के बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं. ठीक है. 2 years पहले. तो दैट्स रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. अगेन ये सीबीएसई वालों के भी एग्जाम में आ चुके हैं ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो देख लो ये भी क्वेश्चन. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बिकॉज आफ्टर दिस गाइस we have done all the kind of sums that could have come from this chapter. ठीक है. अब रेस्ट ऑफ इट आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा. ठीक है. Briefly explain mechanism of investment multiplier with the help of schedule. ठीक है. Take increase in autonomous investment as rupees 1000 CR and MPC as 0.8. देखो ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन यूजुअली 3-4 मार्क्स का आता है. ठीक है. अब बोला है पूरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मैकेनिज्म बताओ विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल. बोला है कि इकोनॉमी में ना 1000 करोड़ से इनकम बढ़ा है और एमपीसी का वैल्यू 0.8 है. ठीक है. तुम बताओ कि ओवरऑल इनकम में क्या इंक्रीज आएगा यूजिंग द एंटायर मैकेनिज्म. तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में अपने को एक टेबल बनाना होता है
ठीक है, एंड देन अपने को एक्सप्लेन करना होता है। तो अभी हम तुम लोगों को टेबल बनाना सिखा देते हैं एंड एक्सप्लेनेशन। तो जैसे तुम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई का एक जब मैकेनिज्म सीखे थे, तो एक बुक में एग्जाम्पल था, उसको लेके सीखे थे, वही तरीके से एक्सप्लेन करना है। टेबल कैसे बनाना है, देखो टेबल में क्या हो रहा है, इधर राउंड्स लिख दो, ठीक है, इधर चेंज इन इन्वेस्टमेंट लिख दो, या चेंज इन इनकम लिख दो, आप इधर लिखो चेंज इन कंजम्पशन, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू चेंज इन सेविंग्स का भी बना सकते हो या नहीं भी बना सकते हो, तो चलिए, ठीक है। तो राउंड 1 में क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ 1000 से, ठीक है। अब जितना से इन्वेस्टमेंट हुआ उतना ही राउंड 1 में देयर इज अ चेंज इन द इनकम, ठीक है। जितना सपोज आज 1000 करोड़ का प्लान मैंने लगाया, तो पक्का वो 1000 करोड़ किसी और का इनकम हुआ है, तो राउंड 1 में द चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन इनकम विच इज 1000 CR। चेंज इन कंजम्पशन कैसे निकालोगे, याद है, MPC was डेल्टा C by डेल्टा Y, MPC 0.8 है, डेल्टा Y 1000 है ना, तो डेल्टा C क्या होगा 0.8 into 1000 which is 800, 0.8 into 1000, ठीक है। अब राउंड 2 में मैजिक होगा, देखो इन्वेस्टमेंट तो चेंज नहीं होगा, आई मीन इन्वेस्टमेंट 1000 हो चुका है, अब इन्वेस्टमेंट में कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। अब देखो 800 पहले राउंड में 800 CR से कंजम्पशन बढ़ा, तो पक्का वो 800 CR किसी और का इनकम हुआ। आज तुम कंजम्पशन के लिए खर्चा किए, तो जिससे तुम सामान खरीदे उसका भी तो इनकम हो गया ना उतने का। तो सेकेंड राउंड में वी कैन सी जो 800 चेंज इन कंजम्पशन था, दैट हैज रिजल्टेड टू चेंज इन द इनकम बाय 800। अगेन अब जिस पर्सन का इनकम बढ़ा 800 से, उसका कंजम्पशन भी बढ़ेगा, बिकॉज इनकम एंड कंजम्पशन डायरेक्टली रिलेटेड है। तो जिस इंसान का इनकम बढ़ा 800 से, उसका कुछ कंजम्पशन भी बढ़ेगा। एंड अपन को इधर पता है कि MPC का वैल्यू 0.8 है, तो अपने पता कर सकते हैं कि चेंज इन कंजम्पशन कितना होगा, 800 into 0.8 विच इज इक्वल टू 640, विच इज इक्वल टू 640, ठीक है, दैट इज 0.8 into 800। अब राउंड 3 में देखो, जिसका कंजम्पशन में 640 का चेंज आया, पक्का वो वापस वो 640 किसी और का इनकम हुआ होगा, तो नेक्स्ट राउंड में 640 इज द चेंज इन इनकम। अब 640 का अगेन 0.8 इंटू करो, ठीक है, 512 किसी का चेंज इन कंजम्पशन हुआ। एंड लाइकवाइज गाइस दिस विल गो थ्रू, दिस विल कीप ऑन गोइंग। अपन को क्या करना है, एंड में टोटल कर देना है, अपन को क्या करना है, एंड में टोटल कर देना है। एंड में टोटल करेंगे तो अपने देखेंगे कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट 100 से था। अब चेंज इन इनकम का वैल्यू कैसे निकालें, ठीक है, उसके लिए तुमको 2 बार फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। पहले तो तुम K का वैल्यू यूज निकाल सकते हैं, कैसे, तुमको MPC का वैल्यू पता है, सो ये तुमको अपने एक्सप्लेनेशन में लिखना होगा कि K इज 1 by MPC, 1 minus MPC, राइट। सो 1 by 1 minus 0.8, इट इज 1 by 0.2 which is equal to 5। अपने को पता चल गया K का वैल्यू 5 है, therefore अब अपने लिए अपना पर्पस है डेल्टा Y निकालना। K पता है, डेल्टा I पता है, तो डेल्टा Y निकल जाएगा। So K is what, delta Y by delta I, which is what, 5 into 1000 is equal to delta Y. Therefore delta Y is what, rupees 5000 CR। तो अपने को पता चल गया ना टोटल चेंज इन इनकम कितना है, 5000। क्योंकि देखो तुमको राउंड्स तुम इतना सारा तो सॉल्व करके नहीं दिखा सकते ना, वो तो चलते रहेगा, तुमको डॉट 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 देके टोटल करना पड़ेगा, एंड टोटल करने के लिए तुमको ये वर्किंग नोट खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। So K is equal to 1 by 1 minus MPC, तो K 5 हो गया, K is equal to delta Y by delta I, delta Y का वैल्यू रुपीज 5000 हो गया। अब हमको पता है चेंज इन इनकम अगर 5000 है, तो चेंज इन कंजम्पशन क्या होगा, 5000 into 0.8। ऐसा ही हो रहा था ना कि 80% ऑफ द इंक्रीज इनकम वाज स्पेंड ऑन कंजम्पशन, देखो डेल्टा C का वैल्यू अपने को पता है 4000 आएगा, दैट इज 5000 into 0.8। बस दिस इज योर टेबल। यहाँ हमारा टेबल खत्म होता है, बाकी ये शेड्यूल था, ठीक है। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द शेड्यूल, और फिर एक्सप्लेनेशन में ये एक पार्ट तुमको दिखाना होगा, व्हाइल एक्सप्लेनिंग, ओके। एंड ऑब्वियसली यू हैव टू राइट द डेफिनेशन एंड मैकेनिज्म, थोड़ा वर्ड्स में अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड, ओके। आई होप गाइज आई हैव बीन सम हेल्प टू यू गाइज, एंड I have tried to cover all the possible sums of this chapter. So all the very best, and I hope you don't get stuck in our exam. Okay, in case of any doubts, you can let me know in my Gmail ID which I have provided below. Okay, thank you so much. See you soon. Bye.